صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 16 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بحیرہ روم کے ساحل سے رابن اور باقی ساتھی قیدیوں کو قاہرہ لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ قیدی اونٹوں پر سوار تھے اور محافظ گھوڑوں پر سوار جا رہے تھے۔ وہ معمول کے مطابق پڑاؤ کرتے اور معمول کے مطابق سفر کر رہے تھے۔ انہیں وہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ قیدیوں میں 6 لڑکیاں تھیں اور باقی مرد نہکتے تھے۔ کسی کے بھاگنے کا بھی ڈر موجود نہیں تھا، مگر محافظ یہ بھول رہے تھے کہ یہ تربیت یافتہ جاسوس ہیں۔ ان میں جو تاجروں کے بھیس میں پکڑے گئے تھے وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیغ زن تھے، اور لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور اور آزاد سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظوں کا کمانڈر ایک مصری تھا۔ اس نے دیکھا ایک لڑکی اس کو دیکھتی جا رہی ہے۔ جب وہ اس کو دیکھتا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ یہ مسکراہٹ کمانڈر کو موم کر رہی تھی۔ اس رات انہوں نے پڑاؤ کیا تو قیدیوں کو کھانا پیش کیا گیا، مگر اس لڑکی نے کھانا نہ کھایا۔ کمانڈر کو بتایا گیا کہ فلاں لڑکی نے کھانا نہیں کھایا، تو اس نے موقع دیکھ کر لڑکی سے بات کرنا شروع کر دی۔ لڑکی کے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا وہ اس سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ جب رات کو سب سو گئے تو کمانڈر اٹھا اور اس لڑکی کو جگایا اور علیحدگی میں لے گیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے اور وہ ساری باتیں کی جو سلطان ایوبی سے وہ کر چکی تھی۔ مصری کمانڈر کو ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ وہ اس کو سچ ہی سمجھے جا رہا تھا کیونکہ وہ پہلی بار سن رہا تھا۔ لیکن مصری نے لڑکی کو بتایا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں قاہرہ جا کر تمام قیدیوں کو سلطان کے ایک محکمے کے حوالے کر دوں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی ساری مجبوریاں بتا دیں۔ مصری کو معلوم نہیں تھا کہ اس لڑکی کی ترکش میں ابھی بھی بہت تیر باقی ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتی۔ تم اگر میری مدد کرو گے تو میں روک دوں گی کیونکہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ میں اپنے خاطر تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرا کوئی غم خوار نہیں۔ تم مجھے رحم دل لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھے لگتے ہو، اس لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ ایسی باتیں سن کر مصری کی مردانگی پگھلنے لگی۔ اس نے اس سے دوستانہ باتیں شروع کر دیں۔ لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر اگلنے لگی۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے گورنر کو اپنی مظلومیت کی ساری باتیں بتائی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ پر رحم کرے گا، مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ لیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ یہ سن کر مصری بدک کر بولا، ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ مومن ہے اور فرشتہ ہے اور شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے اب اس کے پاس دوبارہ لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا میں کہاں ہوں گی۔ وہ مجھے قید خانے میں نہیں اپنے حرم میں رکھے گا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے لڑکی نے مصری کے دل میں صلاح الدین کے خلاف بہت نفرت پیدا کر دی۔ وہ مصری کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ اس نے آخر میں کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ مصری کو یہ یاد رہ گیا تھا کہ وہ تو ایک مسلمان ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب بدل لوں گی۔ پھر یہ دونوں فرار اور شادی کے منصوبے بنانے لگے۔ لڑکی کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح سفر کو لمبا کیا جائے۔ 3 دن کا سفر 6 دن میں مکمل ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے لڑکی کا استعمال کیا۔ لڑکی نے تو ایک ہی رات میں مصری کو اپنے قبضے میں قید کر لیا تھا۔ اس پاگل پن میں مصری نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ آج صبح سفر نہیں ہوگا، جانور تھکے ہوئے ہیں۔ اس حکم سے محافظوں اور شتربانوں کو تو خوشی ہوئی، وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے۔
उन्हें मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो दिन भर आराम करते रहे और गपशप लगाते रहे और उनका कमांडर उस लड़की के पास बैठा बदमस्त होता रहा। दिन गुजर गया, रात आई तो मिस्री लड़की को लेकर दूर चला गया। लड़की ने उसे आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह जब ये काफिला चलने लगा तो मिस्री कमांडर ने अपना रास्ता बदल लिया। उसने अपने दस्ते से कहा, इस तरफ पड़ाव की एक खूबसूरत जगह है, करीब एक गांव भी है जहां मुर्गियां और अंडे मिलेंगे। इसका दस्ता इस पर भी बहुत खुश हुआ कि कमांडर उन्हें ऐश करवा रहा है। अलबत्ता इस दस्ते में 2 अस्करी ऐसे थे जो इसकी इन हरकतों से खुश नहीं थे। इन्होंने उससे कहा, हमारे पास जासूस कैदी हैं, हमें इन्हें जल्दी हुकूमत के हवाले करना चाहिए। बिला वजह सफ़र लंबा करना ठीक नहीं है। मिस्री ने इन्हें झटक कर चुप करवा दिया। दोपहर के बाद इन्हें दूर बहुत से गिद्ध उड़ते नजर आने लगे। ये इसकी निशानी थी कि वहाँ कोई मुर्दार मौजूद है। ये जगह रेतीली और टीलों वाली थी। वो थोड़ी आगे टीले पर चढ़े तो उन्हें एक मैदान नजर आया जहाँ गिद्धों के खौल उतरते हुए शोर बर्पा कर रहे थे। जरा और आगे गए तो नजर आया कि यहाँ लाशें पड़ी हुई थीं। ये उन सौडानियों की लाशें थीं जो बहिरे रूम में मुकीम सुल्तान अय्यूबी की फौज पर हमला करने चले थे। कैदियों और मुहाफिजों का काफिला चलता रहा और ज़रा सा रुख बदल कर लाशों और गिद्धों से हट गया। काफिला जब वहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि इर्द गिर्द उनके हथियार बिखरे हुए थे। कैदियों ने ये हथियार देख लिए। रॉबिन ने लड़की को कुछ कहा तो लड़की ने कमांडर को इशारा करके अपने पास बुला लिया। कमांडर पागलपन में भागता हुआ लड़की के पास आ गया। वो देखो, सामने सरसब्ज इलाका नजर आ रहा है, वहाँ पानी भी मौजूद है। लड़की ने कहा, रात यहीं गुजारते हैं। मिस्री ने काफिले का रुख फेर दिया और सरसब्ज टीले के पास जा रुका क्योंकि रात यहीं गुजारनी थी। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो मिस्री ने लड़की को लिया और दोनों टीलों से भी परे चले गए। उधर लड़की ने मिस्री को बाहों में ले लिया और मिस्री बेखुद हो गया। जब रॉबिन ने देखा कि कमांडर जा चुका है और मुहाफिज सो रहे हैं, उसने अपने एक साथी को जगाया, उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह रॉबिन के 4 साथी जाग चुके थे। मिस्री को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि वो रात का संगतरी भी खड़ा नहीं करता था। रॉबिन रेंगता रेंगता मुहाफिजों से दूर चला गया। उसके बाद उसके 4 साथी भी उसके साथ चले गए। टीले की ओक में जाकर वो तेज तेज चलने लगे और लाशों तक पहुंच गए। इन्होंने टटोल टटोल कर 3 कमानी और तुरकश और एक बर्छी उठा ली। इसी मकसद के लिए तो इन्होंने लड़की से कहा था कि कमानदार से कहे यहाँ कयाम करे। इन्होंने हथियार लिए और वापस मुहाफिजों को मारने के लिए उनके सर के पास जा खड़े हुए। ये एक निहायत कामयाब चाल थी। इस तरह वो आसानी से भाग भी सकते थे। जो ही रॉबिन ने मारने के लिए बर्छी ऊपर उठाई तो एक जन्नाटा सा सुनाई दिया और एक तीर रॉबिन के सीने में उतर गया और इसके साथ ही एक तीर इसके एक साथी के सीने में लगा। इसके 3 साथी अभी यही देखने के लिए पीछे मुड़े कि तीर किसने चलाया है कि 2 तीर और आए और वो उनके सीने में उतर गए। एक साथी भागने लगा तो उसके भी एक पहलू में जा तीर लगा। ये काम उन 2 मुहाफिजों ने किया था जो अपने कमांदार से कह रहे थे हमें मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहिए। वो दयानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब कैदी उनके करीब से गुजरे तो उनमें से एक की आंख खुल गई। उसने अपने साथी को जगाया और कैदियों का ताक़ुब दबे पांव करने लगे। उन्होंने कैदियों को देखा कि वो हथियार उठाकर ला रहे हैं तो वो एक टीले के पीछे छुप गए। जो ही कैदियों ने मुहाफिजों को मारने के लिए बर्छियां उठाई तो उन्होंने तीर चला दिए। उन्होंने अपने कमांडर को आवाज़ दी तो उसे लापता पाया। इस आवाज़ से कैदी लड़कियां और बाकी मुहाफिज भी जाग गए थे। लड़कियों ने जब अपने साथियों की लाशें देखी तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये आदमी आज रात क्या करेंगे। मिस्री कमांडर वहाँ नहीं था और एक लड़की भी गायब थी। मुहाफिजों को मालूम नहीं था कि जब इन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे बिल्कुल इसी वक्त उनके मिस्री कमांडर के पीठ में भी एक खंजर उतर गया था। उसकी लाश तीसरे टीले के पास पड़ी थी। लड़की को मालूम था कि उसके साथी आज रात यह खूनी ड्रामा खेलेंगे। वो मिस्री को खासा दूर ले गई थी।
लड़की मिस्र को एक टीले के साथ लेकर बैठ गई। उसी टीले से ज़रा परे बालियान और उसके साथियों ने पड़ाव डाल रखा था। बालियान मोबी को साथ लिए टीले ही की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और मोबी ने नीचे बिछाने के लिए दर्री उठा रखी थी। वो दर्री बिछाकर बैठे और अभी बातें ही कर रहे थे कि उन्हें किसी लड़की की बात करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो दबे पांव उस तरफ गए और टीले की ओट से देखा। उन्हें साफ नज़र आ रहा था कि एक मर्द और एक औरत बैठे बातें कर रहे हैं। मोबी और आगे गई और बातों से पहचान गई कि ये उसकी साथी लड़की है और ये भी कि उसे काहिरा लेकर जाया जा रहा है। मोबी ने ये देखा तो बालियान से कहा, बालियान, ये मिस्री हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं और ये लड़की मेरी साथी है, बड़ी ही खूबसूरत है। तुम इसको बचा लो और अपने सफरी हरम में एक इजाफा कर लो। ये मिस्री उस मजबूर लड़की के साथ रंग रंगीलियाँ मना रहा है। बालियान शराब पिए हुए था। उसने बहुत तेज़ी से खंजर निकाला और आगे बढ़कर मिस्री कमांडर के पीठ में घोंप दिया। जो लड़की मिस्री के साथ बैठी थी उठ खड़ी हुई और उसको मोबी ने आवाज़ दी। लड़की दौड़कर मोबी से लिपट गई। मोबी ने पूछा, दूसरी कहाँ है? उसने रॉबिन और बाकी कैदियों का बताया और ये भी कहा कि वो 15 मुहाफिजों की निगरानी में है। बालियान दौड़ता गया और अपने 6 साथियों को बुला लाया। उनके पास कमाने और दूसरे हथियार मौजूद थे। इतने में मिस्री मुहाफिजों में से एक अपने मिस्री कमांडर को आवाज़ देता उधर आया। बालियान के एक साथी ने तीर चलाया और उस मुहाफिज को कत्ल कर दिया। बालियान साथियों के साथ आगे बढ़ा तो उसे टीले के उस तरफ 2 बड़ी बड़ी मशअलें जलती नजर आईं। उसने देखा तो 5 लड़कियां अलग खड़ी थीं और उनके गिर्द मुहाफिज भी मौजूद थे। मोबी और दूसरी लड़की ने जब अपने साथियों की लाशें देखीं तो उनकी सिसकियां बंद गईं। मोबी के उकसाने पर बालियान ने अपने साथियों से कहा, ये तुम्हारा शिकार है, इन्हें ख़त्म कर दो। साथियों ने कमानों में से तीर निकाले और कैदी मुहाफिजों पर चला दिए। एक ही बार में उन्होंने 6 मुहाफिजों को मार डाला। अभी बाकी मुहाफिज ये समझ ही सके थे कि तीर कहाँ से आए हैं कि उन्होंने 6 और तीर चला दिए, जिससे बाकी के 6 मुहाफिज मर गए। अब सहरा में लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। मोबी दौड़कर लड़कियों से मिली। इतने में इन्हें एक घोड़े के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। बालियान ने कहा, यहाँ रुकना सही नहीं है, इनमें से एक बचकर निकल गया है। मुझे लगता है वो काहिरा की तरफ जा रहा है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं।